Hello everyone, today we are back with an awesome MCQ series and this MCQs will be of 20th August. So let's start guys, and before we start I request all of you to please subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for any further update. We have been tirelessly doing these MCQ series from the past 2.5 months, so please subscribe to our YouTube channel guys. Now question number 1 is, consider the following statements with respect to Kudremukh National Park. So statement 1, it is located in the state of Karnataka, and statement 2, Tunga, Bhadra and Netravati river flows through the park. Now context क्या है? तो context ये है कि कर्नाटका एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है कि ये जो कुद्रेमुख नेशनल पार्क है इसके अराउंड 1 किलोमीटर सराउंडिंग जो एरिया है उसको इको सेंसिटिव जोन अगर डिक्लेयर किया जाएगा तो उससे जो नेटिव कम्युनिटीज़ हैं उनको कोई भी वल्नरेबिलिटी नहीं होगी. ओके, सो कोई भी उनको नुकसान नहीं होगा, कोई हार्म नहीं होगा. तो दिस वाज आवर कॉन्टेक्स्ट. तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हुई कि कर्नाटका में ही है कुद्रेमुख नेशनल पार्क, तो स्टेटमेंट 1 हमारा जो हुआ वो करेक्ट हो गया. नाउ एज वी हैव discussed, this is in the state of Karnataka, specifically in the Chikmagaluru district. Now other important things about Kudremukh National Park is it has a tropical wet forest. Okay, evergreen kind of forest है, tropical wet evergreen forest. The next thing is ये जो 3 नदियाँ हैं तुंगा, भद्रा एंड नेत्रावती, ये भी इस पार्क के थ्रू फ्लो करती हैं. एंड द कदम्बी वाटरफॉल्स, these also lie in the Kudremukh National Park. तो जो हमारा आंसर है वो है C, both 1 and 2 guys. Okay, so now let's move forward. Question number 2 is, consider the following statements related to Monetary Policy Committee. Statement 1, it is a committee of the RBI entrusted with the task to contain inflation within the specified target level. Statement 2, decisions will be taken by majority vote with each member having a vote. And statement 3, RBI governor is an ex officio chairman of the MPC and enjoys veto power. So Urjit Patel committee first recommended the formation of this monetary policy committee. Urjit Patel, as we all know, was our former RBI governor and he recommended the formation of monetary policy committee. Now the function of monetary policy committee is to set the rates, interest rates ये set करते हैं. Now the committee consists of 6 members. 3 मेंबर्स होते हैं आरबीआई के और 3 करता है हमारा गवर्नमेंट अपॉइंट. ये 3 जो मेंबर्स होते हैं उनमें एक होते हैं गवर्नर ऑफ द आरबीआई, फिर दूसरे होते हैं डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द आरबीआई एंड तीसरे मेंबर जो होते हैं दैट इज़ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द बैंक इन चार्ज ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी. ओके, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ द मॉनिटरी पॉलिसी. ये आरबीआई की साइड से 3 मेंबर्स और 3 मेंबर्स को हमारी गवर्नमेंट अपॉइंट करती है. ओके, नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट रेट्स ये डिटरमिन करती हैं और ये डिटरमाइन करती हैं कि इन्फ्लेशन के हिसाब से कैसे इन रेट्स को वेरी करना है. ना द आरबीआई ये जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है इसमें हर मेंबर के पास एक वोट होता है और जो गवर्नर है उस पर वीटो पावर नहीं होता है. ओके, ही डज़ नॉट कैरी एनी वीटो. सो स्टेटमेंट जो 3 है दैट इज़ इनकरेक्ट. बाकी दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं हमारे वो सही हैं. तो आंसर है इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना था गाइस एंड दिस इज C3 ओनली. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. Question number 3 is, Marpol Convention deals with A, prevention of pollution from ships caused by operational or accidental causes, B, protection of ozone layer, C, powers and functions of the Interpol, or is it D, control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal. तो कॉन्टेक्स्ट के तौर पे यू ऑल नो मॉरिशस में एक ऑयल स्पिल हुआ है. जापानीज़ कैरियर इसके थ्रू एक काफ़ी बड़े लेवल का एक ऑयल स्पिल हुआ है एंड दिस हैज़ लेड मॉरिशस टू ट्रिगर एन एनवायरमेंटल इमरजेंसी. और इसी के बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे मारपॉल. सो मारपॉल इज़ अ कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स कॉज बाय ऑपरेशनल और एक्सीडेंटल कॉजेस. तो आंसर तो हुआ हमारा ए. नाउ इट वाज अडॉप्टेड इन 1978. Okay, India as a signatory. India as a signatory guys, तो you must remember this. Also इसके 6 annexes हैं. तो सबसे पहला जो annex है that is pollution from ships by oil, ये पहला annex है.
दूसरा नेक्स्ट में जब हम बात करेंगे तो दैट इज़ नॉक्शियस लिक्विड। तीसरा है डेंजरस गुड्स इन पैकेज्ड फॉर्म। फिर चौथा है हमारा सीवेज। फिफ्थ इज़ गार्बेज एंड सिक्स्थ इज़ एयर पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स। ओके, सो ये 6 एनेक्सेस हैं और ये याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखना आपको इंडिया साइनेटरी दिस वाज अडॉप्टेड इन 1978 और कॉन्टेक्स्ट तो यही है कि मॉरिशस में जो ऑयल स्पिल हुआ है उसकी वजह से ये मार्पल कन्वेंशन फिर से एक बार फोकस में आ जाता है। तो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। Statement 1, it was founded by Maulana Abul Kalam Azad, independent India's first education minister. And statement 2, it is an autonomous organization of Government of India involved in India's external cultural relations under the administrative control of Ministry of Culture. Now you have to tell which of the above statements are correct. तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनका एक पोर्ट्रेट इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस में इनाग्रेट किया है हाल फिलहाल में और इसी की वजह से ये फोकस में आता है। नाउ इट वाज फाउंडेड बाय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इंडिपेंडेंट इंडियाज़ फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, दिस इज़ करेक्ट। ओके, ये हमारे जो एक्सटर्नल कल्चरल रिलेशंस हैं वो मेंटेन करता है एंड दिस डजंट कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है दैट इज़ इनकरेक्ट। ऑल्सो एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि इंटरनेशनल योगा डे which falls on 21st of June, ये सेलिब्रेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन आवर मिशंस एंड आउटपोस्ट जो भी दुनिया में है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के पास है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस। ओके, सो जो आंसर है हमारा दैट इज़ A1 ओनली। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। Question number 5 is Digital Quality of Life Index 2020 was in the news recently, is released by A. ITU, B. OECD, C. Amnesty International, or is it D. Surfshark? Now ITU is the International Telecommunication Union. So आपको बताना है कौन सा इनमें से ऑप्शन सही है। सेकेंड एडिशन था माइंड यू, सेकेंड एडिशन ऑफ दिस डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 and it was released by Surfshark. Okay, now what are the parameters? So कुछ parameters हैं। फर्स्ट इज द इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी, इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा है सिक्योरिटी एंड गवर्नमेंट। ओके, एंड ऑल दीज पैरामीटर्स हैव इक्वल वेटेज। तो जो शुरू की टॉप कंट्रीज़ हैं दैट आर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, डेनमार्क एंड स्वीडन। थर्ड पे आता है कनाडा, दिस इज़ नॉट टू बी रिमेंबर्ड। और फिर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी है दैट इज़ इंडिया इसमें 9th रैंक पे है एंड इट इज़ फर्स्ट अमंग द ब्रिक्स कंट्रीज़। फिर इंटरनेट क्वालिटी की अगर बात करें तो इंडिया की 78th रैंक है एंड इंडिया इज़ बिहाइंड इवन पाकिस्तान। इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 79th रैंक है इंडिया के एंड इट इज़ बिहाइंड श्रीलंका। ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट में इंडिया की 15th रैंक है एंड इट इज़ फर्स्ट अमंग द ब्रिक्स एंड सार्क कंट्रीज़। और इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी की बात करें तो 57th रैंक पे है इंडिया एंड इट इज़ अबव पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। तो इसमें कुछ आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है। एक चीज़ अगर आप याद कर सकते हैं तो ये कर लीजिए कि इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी में इंडिया काफ़ी आगे है, ब्रिक्स में नंबर 1 पे है और इवन इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट में भी इंडिया काफ़ी आगे है। आंसर हमको पता है डी, सर्फशार्क। इसी के साथ हमारा आज का MCQ ख़त्म होता है गाइस। आई होप यू लाइक इट। विल मीट टुमारो। थैंक यू।